شبیر نے کبیر والا سے 12 میل دور نواحی گاؤں شکرو والا میں ایک ایسے خاندان کو دیکھا ہے جس کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ معاملہ وٹے سٹے کی شادی کا تھا۔ 13 ایکڑ زمین کے مالک غلام عباس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ سارا معاملہ اس کا 12 سالہ بیٹا دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کہ غلام عباس اپنے گھر میں تھا اور بیوی سے کسی بات پر الجھ رہا تھا۔ ایک بات سنو، کہ تمہارے بھائی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اسے اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ اس کی بہن میرے گھر پر ہے؟ کم تو تمہاری بھی بہن نہیں ہے، ناک میں دم کر کے رکھا ہے میرے بھائی کا۔ یہ تو پچھتا رہی اس وٹے سٹے سے۔ دیکھو، اس سے کہہ دینا کہ اگر اس نے میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا ویسا کیا تو یاد رکھے میں بھی اس کی بہن کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ میرا کیا قصور ہے؟ تو میری بہن کا قصور ہے، وہ ہر وقت اسے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم اس سے بدلہ لینے کے لیے اپنا دل خوش کر لینا، وہ اسے طلاق دے گا تم مجھے طلاق دے دینا، اب خوش؟ دیکھو، زیادہ بحث مت کرو مجھ سے۔ ارے تمہیں تو اتنا سا بھی خیال نہیں ہے کہ منا بڑا ہو رہا ہے، 12ویں سال میں لگ گیا ہے، 10 سال کی بچی کی تو لاج رکھ لو۔ مجھے بلیک میل مت کرو اور جاؤ جا کے اپنی بھابھی کو فون کرو اور اس سے پوچھو کہ وہاں سب خیریت ہے نا۔ میں نہیں کر رہی فون۔ شہباز، تم پردے کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ بہن کا ہے؟ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور میرا بچہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کیا ہو میرے بچے کو، کیوں ڈر لگ رہا ہے میرے بیٹے کو؟ ڈر تو لگے گا نا، جب اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ اس کا باپ ظالم ہے تو خوف تو آئے گا۔ واہ بھائی واہ، کیا اولاد پالی جا رہی ہے۔ چل منہ۔ تھوڑی دیر میں غلام عباس کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کی بیوی کاندھے اچکاتے ہوئے چلی گئی، ساتھ میں بیٹے کو بھی لے گئی۔ یہ غلام عباس کی بہن کا فون تھا جس کی وٹے سٹے پر شادی ہوئی تھی۔ فون سنتے ہوئے غلام عباس کافی پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا۔ غلام عباس کی بہن کو اس کی بیوی کے بھائی نے طلاق دے دی تھی، جس پر غلام عباس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور غلام عباس کی بیوی اپنے بچوں سمیت بھائی کے گھر رہنے لگی تھی۔ یہ واقعہ غلام عباس کی شادی کے 13 سال بعد پیش آیا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ غلام عباس کا بیٹا شہباز بہت غصے میں تھا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ غصہ آیا ہے مجھے۔ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کھانا بنا رہی ہوں نا میں۔ نہیں کھانا کھانا، مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ تو جاؤ، چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ میں نے منع کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ وہی باپ ہے نا تمہارا جس نے تمہاری ماں کو بے قصور کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیا تھا؟ جاؤ، چلے جاؤ۔ ماں کے احتجاج پر بیٹے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ اور اماں، مجھے غصہ آ رہا تھا، ابو اچھے نہیں ہیں، ابو ان سے ملنے بھی نہیں آتے ہیں، نہیں جانا ان کے پاس۔ میرا بچہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے 2-3 سال بعد غلام عباس نے ایک 22-24 سال کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ خود غلام عباس کی عمر 45-46 سال تھی۔ دوسری بیوی سے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جن کی عمریں 7 سال سے 2 سال کے درمیان تھیں۔ پہلی بیوی سے ہونے والا بیٹا شہباز 23 برس کا ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ باپ کی دوسری شادی جوان بیٹے سے کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شہباز ماموں کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ 23 سالہ شہباز ماموں کی زمینوں پر کام کر رہا تھا کہ دور سے ماموں نے آواز دی۔ ارے کب تک ماموں کی زمین پہ کام کرتا رہے گا بھانجے؟ کیا کروں ماموں، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ابو سے بات کروں اپنے حصے کے حوالے سے۔ اب ایک ٹوٹی کوڑی نہیں دے گا تیرا باپ، ساری دولت ان ستیلے بچوں کو دے گا۔ پتہ نہیں ماموں، میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا زیادہ نہ سوچ، کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شہباز منہ میں نوالا رکھتے ہی خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کا باپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تھا اور کافی بیمار لگ رہا تھا۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے
ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रहूंगा। अच्छी बातें कर रहे हैं आप। देखो, अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरी जायदाद पूरी औलाद में बराबर बांट देना, किसी को कोई शिकायत ना हो। मरे आपके दुश्मन, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मुझे ना आपके बड़े बेटे शहबाज से डर लगता है, वो कोई गड़बड़ खड़ी कर सकता है। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ले, आ गया आपका बड़ा बेटा। आ गया तू? याद आ गई बाप की? अब्बा, मैं ये कहने आया हूँ कि तुमने मेरी माँ के साथ ज्यादती की थी। वो बेकसूर थी, क्यों दी थी तलाक उसे? शुक्र, बड़ा आया माँ का हिमायती। चल निकल जाए यहाँ से। हाँ, चला जाऊंगा, मगर मेरा हिस्सा दे दो। जब मैं मर जाऊंगा ना तो मिल जाएगी तुझे खैरात, फिक्र ना कर तू। हाँ, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, कोई खा थोड़ी है। तुम चुप रहो, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो। तमीज से बात कर, ये माँ है तेरी दूसरी। मुझे तमीज सिखाएंगे अब्बा? उस वक्त तमीज कहाँ गई थी जब मुझे और मेरी माँ को इस घर से धक्के देकर निकाल रहे थे। दफा हो जाए यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, मगर ये याद रखिएगा, इस औरत को इतनी आसानी से अपना हिस्सा खाने नहीं दूंगा मैं। अबे, किस सोच में डूबा हुआ है? कि खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। शहबाज को यकीन हो गया था कि उसका बाप जायदाद में से उसे हिस्सा नहीं देगा। माँ का दुख भी बेटे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। शहबाज घर में दाखिल हुआ तो माँ की आंख में आंसू थे। अम्मा, क्यों रो रही हो? नहीं, रो नहीं रही थी। खाना दूं तुझे? अम्मा, खा लूंगा, आज अब्बा से मुलाकात हुई थी। कहाँ? रास्ते में। फिर क्या, मुझे आवाज लगा रहे थे, मैं नहीं रुका, और रुकता भी क्यों? जिसने मेरी माँ को दुख दिया हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जा जाके खाना खा ले, अंदर रखा हुआ है। मैं सोने जा रही हूँ। शहबाज के दिल में बाप के खिलाफ नफरत इंतहा पर पहुंच चुकी थी। फिर एक रात वो खामोशी से अपने मुबैना साथियों के साथ बाप के घर कूदा और फायर करके बाप को कत्ल कर दिया। शहबाज के बाप का कत्ल कई दिनों तक मुअम्मा बना रहा। आखिरकार बेटा गिरफ्तार हुआ और उसने इकरार जुर्म कर लिया। मकतूल गुलाम अब्बास उर्फ कैसर की मौत पर उसके मोहल्ले पड़ोस वाले और रिश्तेदार इंतहाई दुख में थे। अस चाहते हैं कि बकिया मुलजमान जेड़े हैं ना, वो जल्द अज जल्द वो भी ट्रेस हो जावन ते इस मुलजमान नूं जितनी सख्त सजा मिल सके उन्होंने काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। कत्ल करने वाला उनका बेटा शहबाज कलंदर संघारे सुते पे दीवार फैलांग के आया, मेरे मियां नूं कत्ल किया है। मेरे बड़े अफसरान तो अपील है कि मैंने इंसाफ दिता जाए, मुलजमान नूं सख्त सजा दे। हुकाम अदालत से अल इलाका की तरफ अपील है। इलाका जो मौजूद हैं उन लोगों की बार बार एक ही अपील है कि जो लोग इस घिनौनी साजिश, इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे भाई कलंदर ने मेरे अब्बू को कत्ल किया। ये है वो मनाजिर जब बेटे के हाथों बाप के कत्ल के बाद पूरा गांव जमा हो गया था। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मौका पर हमने देखा कि 3 बुलेट्स फायर हुए और जो मकतूल है वो अपने घर के अंदर सोया हुआ था। इसके बेटे का नाम शहबाज उर्फ कलंदर है। शहबाज उर्फ कलंदर की वालिदा को इसने कैसर अब्बास मकतूल ने
तलाक दे दी थी और ये अपने मामू के यहाँ रिहाइश पजीर था। हमने जब इसकी हरकत व सकनात देखी, फिर इसके बाद इसका CDR लिया गया। CDR के हवाले से इसको इंटरोगेट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई। इसने कन्फेस कर लिया कि इसने बताया कि मैंने अपने वालिद को एक तो मेरी वालदा को तलाक दे दी हुई थी और हमें घर से निकाला हुआ था, इसलिए कत्ल किया। और इन दिनों बड़े हालात साजगार थे कि मेरे वालिद की दुश्मनियाँ जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों से हैं और मेरी तरफ तो किसी का शक भी नहीं जाना। फिर ये लालच ज़हन में था कि मेरा वालिद बड़ा वेल ऑफ है, इसके पास अब जानवर काफ़ी जानवर हैं, ज़मींदारा उसका अच्छा है। तो मैंने एक जो है ना अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया कि अब इसका मेरी तरफ तो किसी का शक भी नहीं जाना। तो मैंने घर में जाके रात की तारीकी में घर गया और वालिद पे सोए हुए पे पिस्टल के 3 फायर किए। और ये है अपने बाप का मुबैना कातिल। मेरे वालिद ने मेरी वालदा को तलाक दे दी थी। मैं मामू के पास रह रहा था, रिहाइश थी मामू के पास। मैं अपने वालिद के पास गया कि मुझे जायदाद का हिस्सा दो। वालिद ने कहा मैंने आपको कुछ भी नहीं देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर वापस आ गया। मेरी माँ को उसने फैसला दिया हुआ था, जोश आया मुझे, मैं गया, मैंने जाके उसको फायर मारे। मैंने कहा मेरे किसने शक करना है। मैंने SHO ने तफ्तीश की, फिर इस तफ्तीश में SHO ने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने जुर्म इकबाल कर लिया कि मैंने मारा है। शब्बीर ने जब मकतूल के छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो बता रहे थे कि उनके बाप को कत्ल कर दिया गया था। ये बच्चे अभी छोटे हैं, अभी इन्हें इतना एहसास नहीं, लेकिन शब्बीर उस वक्त का सोच कर कांप जाता है जब ये बच्चे जरा बड़े होंगे तो इन्हें किस शिद्दत से अपने बाप की याद सताएगी। यतीम होने का दुख शायद उनकी जिंदगी से कभी ना निकल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। जब बाप ज़ईफ और कमजोर हो जाए तो उसकी निगाहें जवान बेटों की तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं कि वो उनका सहारा बनेंगे। लेकिन शब्बीर ने जिला अटक में फतह जंग के इलाके ताजा बारा में एक ऐसे बाप को देखा है जिसने सारी जिंदगी अपने बेटों के लाड उठाए और उनकी ख्वाहिशें पूरी की। और जब बाप की ख्वाहिशात पूरी करने का वक्त आया तो मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 60 साला अमीर गुल अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। उसकी मेज पर इलाके का नक्शा था और दफ्तर के कुछ लोग फोन पर किसी से बात कर रहे थे। इस दौरान एक अमीर दिखाई देने वाले मियाँ बीवी दफ्तर में दाखिल हुए और अमीर गुल को सलाम किया। जी हुक्म करें। हुक्म तो नहीं अर्ज है, हमें एक 2 बेड का फ्लैट दिखा दीजिए। मिल जाएगा 2 बेड का आपको बेडरूम, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, चाय तो पियेंगे ना? नो थैंक। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय तो आपको पीनी होगी। नवाज बेटा 2 चाय ले अच्छी सी जल्दी। अच्छा ये बताएं कि रेंज क्या है आप लोग? हाँ रेंज कुछ ज्यादा नहीं है हमारी, और 25-26 के अंदर हमें कोई 2 बेड वेस्ट ओपन मिल जाए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये देखें, ये नया प्रोजेक्ट है और इसमें रेट भी बड़े मुनासिब हैं, पोजीशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, तकरीबन डिलीवरी के लिए तैयार है ये। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका विजिट करवा देता हूँ आपको। आप विजिट करा दें तो बेहतर होगा। जी जी, मैं विजिट करवाता हूँ आपको। चाय लीजिए बेगम साहब, चाय ले। आप भी ले रहे सर चाय? नहीं नहीं आप भी। अच्छा एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप अपनी रेंज कुछ बढ़ा लें तो जरा अच्छा फर्निश्ड मिल जाएगा आपको। अर्ज ये है कि बेगम की ज्वेलरी बेचने के बाद कोई हमारे पास 25-26 लाख जमा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर हमें कोई फ्लैट मिल जाए। असल में इसमें भी हो जाएगा, मगर वो कि सारा फर्निश्ड फिर आपको करवाना पड़ेगा। मगर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। आप हमें जल्दी से विजिट करा दें। जी जी, मैं नवाज बेटा गाड़ी लगा दो, ठीक है? चल। फिर वो तीनों अमीर गुल की कार में साइट की तरफ जाते दिखाई दिए। अमीर गुल के जाते ही उसका बड़ा बेटा 22 साल उबैद अपने बाप के दफ्तर में दाखिल हुआ। अच्छा ये बताओ अब्बा कहीं? साफ तो साइड विजिट कराने गए। अच्छा वो कुछ कैश लेके गए? कैश के बारे में तो मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास 10-20 हज़ार रुपये रखेंगे? 10-20 हज़ार तो नहीं होंगे, 5,000 रुपये होंगे। चलो यार तुम वही दे दो। चलो
बस बेफिक्र हो जाओ, कल तक मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। अमीर गुल काफी अरसे से प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा सा मकान बना लिया था। बीवी अपने बेटों को नाकारा होने का ताना देती तो बाप उनकी हिमायत में बोल पड़ता। शब्बीर ने देखा कि अमीर गुल की बीवी ने दस्तरखान बिछाया हुआ था। अमीर गुल दस्तरखान पे था। माँ अपने बेटों को आवाज दे रही थी। अरे उबैद, असद, आ जाओ निकम्मो, कब से नाश्ता लगा हुआ है, तुम लोग बिस्तर तोड़ रहे हो, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा है। आओ, तुम्हारी मासी ने नाश्ता बना दिया। अरे भाई क्यों गुस्सा कर रही हो मेरे बच्चों पर? आ जाएंगे मेरे शहजादे। हाँ, शहजादे और शहजादों की हरकत सुनोगे ना तो आप तो खुद हैरत होगी। कोई फ्लैट किराए पे दिया और उसका एडवांस दोनों मिलके खा गए। अच्छा, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात। किसका पैसा खाया? वती साहब है ना, उनके भाई के। अरे मैंने अपने जेवर बेच के पैसे अदा किए। चलो कोई बात नहीं, कारोबार में ऐसा होता रहता है। मैं तुम्हें और जेवर दिलवा दूंगा और माशाल्लाह से मेरी एक अच्छी डील होने वाली है। लेकिन इनका कुछ करे, ये कब तक इस तरह वेले घूमते रहेंगे? अरे काम काज में लगाएं, कुछ तो करें इनके लिए। अरे भाई अभी उनका बाप जिंदा है, अयाशी करने दो उन दोनों को। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, ये क्या तुम्हारी माँ शिकायत कर रही है? अम्मा लगा दी ना अब्बा को शिकायत। हाँ, तुम्हारे बाप से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? अरे छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। बेटा तुम लोग नाश्ता करो, तुम्हारी माँ की तो आदत है। असल में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ काम पे चलो। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम तुम दोनों कारोबार तो संभाल सको। अब्बा कर लेंगे काम भी, अभी नाश्ता तो करने दे। करो नाश्ता। लेकिन अब्बा हम ये प्रॉपर्टी का काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे हो कि ये काम नहीं करेंगे? ये निकम्मे हैं, ये कोई भी काम नहीं करेंगे। इन्हें प्रॉपर्टी का नहीं, कोई भी काम करनी, निकम्मे को बिठा के खिलाते रहो बस। एक तो तुम ना। माँ गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई और बाप बेटों का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें समझाने बुझाने लगा। बेटों की शाह खर्चियों की वजह से अमीर गुल के माली हालात खराब होते जा रहे थे। अमीर गुल की बीवी उस तमाम सूरत हाल का इल्जाम अपने शौहर को देती थी, जिस पर बहस व मुबाहिसा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। फिर एक दिन अमीर गुल शदीद बीमार पड़ गया। अमीर गुल अपने दफ्तर में था कि शब्बीर ने देखा कि उसका सांस अटक रहा था। नवाज देखो मुझे क्या हुआ। नवाज। अमीर गुल की हालत देखकर दफ्तर में मौजूद लोग उसकी तरफ लपके तो शब्बीर ने एक एम्बुलेंस को तेजी से दौड़ते देखा। अमीर गुल शदीद बीमार पड़ गया था और बिस्तर से लग गया था। जमा पूंजी तेजी से खत्म होती जा रही थी और उधर बेटों के मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। अमीर गुल की बीवी भी अपने शौहर के खिलाफ होती जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि अमीर गुल खांस रहा था और बीवी उसको पानी देते हुए पैसों का मुतालबा कर रही थी। काम पे जाएंगे आप? मेरी हालत देख रही हो, काम पे जाने जैसी है। हालत तो ठीक है और काम पे जाएंगे तो और ठीक हो जाएंगी। कैसी दुनिया है, पैसे की दुनिया। अरे उन दो निकम्मों से क्यों नहीं कहती काम पर जाने के लिए? कौन निकम्मों को? अच्छा, उनको जिनको आपने नाकारा बना दिया। बच जाओ अपनी बड़बड़। मैं खुद खा लूंगा रोज। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, ले लें आप खुद दवा और ले और खा के मर जाएं ताकि रोज रोज की झंझट से जान छूटे। चलो दवा यहाँ से। अमीर गुल का घर, जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से जन्नत बनाया था, एक जहन्नम में तब्दील होता जा रहा था। अमीर गुल की बीवी और बेटे एक हो गए थे और चाहते थे कि अमीर गुल बीमारी के आलम में भी काम करे और अखराजात पूरे करे। शब्बीर ने देखा कि अमीर गुल बिस्तर से उठने की कोशिश में बार बार सहारा तलाश कर रहा था कि सामने से एक बेटे ने उसे देख लिया। अरे 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 अब्बा, अब्बा तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुदा ना खास्ता पहाचो। हुजूर जाऊंगा। अच्छा अब्बा, हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है। अरे बेस इंसान, कहाँ से लाऊं 3? कुछ
कोई काम वाम नहीं। अब्बा हमें नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन हमें 3 लाख रुपए चाहिए। बाप खांसता हुआ बिस्तर से उतर गया और अकड़ू बैठकर सांस बहाल करने लगा, जिस पर बेटा तंज करके चला गया। अरे अब्बा बस करो ये एक्टिंग, पैसों का बंदोबस्त करो, पैसे चाहिए पैसे। अमीर गुल के घर में रात दिन एक ही फिक्र गर्दिश कर रही थी कि अमीर गुल कब दोबारा काम के काबिल होगा और अपने नाकारा और कामचोर बेटों के मुआशी मुतालबात पूरे करेगा। बीवी भी शोहर से तंग आ चुकी थी। फिर एक रोज बाप, बेटों और बीवी में बहस व तकरार हुई। झगड़ा तो तकरार से हाथापाई तक पहुंच गया। फिर मुबैना तौर पर बेटों ने बाप पर ईंटों से हमला कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। मुल्जिमान पकड़े गए। कत्ल वाले दिन भी मकतूल अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिस पर तीनों ने, मां ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया। यहाँ से रिपोश हो गए जी। और इसके बाद फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में आई। उसी केस से हमने उनको पकड़ा। उन्होंने दौरान गिरफ्तारी इंकशाफ किया। फिर उन्हें ईंटों पत्थरों की मदद से बड़ी बेदर्दी के साथ मकतूल को कत्ल किया। ये है वो मनाजिर जिनमें माँ और उसके 2 बेटे बहैसियत मुल्जिमान थाने में मौजूद थे। शब्बीर ने मुबैना तौर पर बेटों के हाथों बाप के कत्ल पर शदीद दुख का इजहार किया है और इसे अखलाकी गिरावट और इंसानी इक़दार की पस्ती करार देते हुए मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलने की उम्मीद जाहिर की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आज तो शब्बीर ने वो कयामत खेज, शर्मनाक और शायद अपनी जिंदगी का सबसे हौलनाक और बदतरीन मंजर देखा है। ऐसा मंजर जिसे बयान करते हुए शब्बीर के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन पहले आप इस चेहरे को देख लीजिए। हराम से शुरू होने वाला कोई भी लफ्ज इस चेहरे को मुखातिब करने के लिए नाकाफी है। ये चिन्योट का एक जमींदार है और इसका नाम है भाई खान। नाम तो यकीनन इंसानों वाला है, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो इसके चेहरे से आपको ऐसे जानवर के नुकूश उभरते दिखाई देंगे। ये खौफता भी है, गुर्राता भी है और चलते फिरतों पर हमला भी करता है। सूरत शक्ल खुदा की बनाई हुई है और इस पर किसी को उंगली उठाने का हक नहीं, लेकिन खुदा की बनाई हुई सूरत शक्ल को अपनी बदामाली और करतूतों से अगर कोई नहूसत में तब्दील कर दे तो क्या किया जा सकता है। आप मेरे अल्फाज पर न जाएं, बल्कि इस भाई खान नामी जमींदार के चेहरे को मुसलसल देखते रहिए। आपको गुर्राने और भौंकने की आवाज भी सुनाई देगी। इसका कसूर, इसने एक शरीफ मेहनतकश इंसान ट्रॉली मजदूर को कुत्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद वायरल कुत्ता बनकर वायरल हो गया। यह है वो चेहरा जिसे आप देख रहे थे। इसके हाथ में रस्सी है जो एक इंसान के गले में बंधी हुई है। ये शरीफ इंसान मेहनतकश और हलाल की रोजी कमाने वाला अख्तर है। इसने जमींदार की मुफ्त की बेगार से इनकार कर दिया था। ये बात भाई खान को इतनी बुरी लगी कि इसने अपने हुल्ले भेजकर इस ट्रॉली मजदूर को उठवा लिया। उसने मुंह पर कपड़ा डालकर गले में रस्सी बांधी, खेतों में कुत्ते की तरह फिराया और फिर उसे नाली का गंदा पानी पीने पर भी मजबूर किया। अपने कारिंदे से वीडियो बनाकर पूरे गांव में फैला दी और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जरा सुनिए ये रस्सी पकड़कर चलने वाला जानवर एक इंसान से क्या कह रहा है। अक्सर कटुआरा पानी लग के बड़ा हो मंदिया अक्सर साहब पानी लगला दिन में छड़ना दिया। वीडियो वायरल हुई तो इंसान को कुत्ता बनाने वाला कुत्ता खुद भौंकता हुआ पकड़ा गया। और अब देखना यह है कि कानून इसका शुमार जानदारों के किस ग्रुप में करता है। गले में रस्सी डालकर उसको घसीटा गया और उसकी वजह यह थी कि उसने जो ट्राली बनानी थी, वो जिसका मैकेनिक था, उसने वो जो मुकर्रा वक़्त में बना कर नहीं दी, तो इसकी वजह से उसकी तजलील की गई और इसकी वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया, जिस पर फौरन पुलिस ने रिएक्ट किया। ना सिर्फ हमने मुद्दई से दरख्वास्त लेकर उसकी FIR दर्ज की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। शब्बीर का कहना है कि वो जो देखेगा दिखाएगा, आज भी और कल भी, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आर्ट का ज़ौक़ व शौक इंसान की रूहानी तस्कीन तो कर सकता है, लेकिन बच्चों का पेट नहीं भर सकता।
कोयटा शहर का ये आर्टिस्ट जिसका नाम मुनीर अहमद है, सुनिए इसकी कहानी शब्बीर की जुबानी। अपने वीरान से स्टूडियो में कैनवस पर रंग भरते हुए थक गया और जब उसकी पजीराई सिर्फ मुंह ज़बानी होने लगी तब उसने सोचा कि उसके बच्चे फाकों से मर जाएंगे। उसके काम को कोई खरीदने तक के लिए तैयार नहीं। तब उसने वेल्डिंग करने वाला पाइप उठाया और रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने लगा। आर्ट तो उसे कुदरती तौर पर आता था, लेकिन उसने वेल्डिंग का काम बाकायदा सीखा और रोजी कमाने लगा। फारिग औकात में शब्बीर ने मुनीर को देखा कि वो अपने गर्द आलूद पेंटिंग के साथ वक्त गुजार रहा था। पेंटिंग्स की नोक प्लग भी ठीक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद वो सोच रहा हो कि आर्ट जो इंसान की रूहानी ग़िज़ा है, फनकार को भूखा ही मार देता है। सकाफती इदारों की गरीब फनकारों पर कम ही नजर पड़ती है। जरा मुनीर की बनाई हुई तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चेहरे ही नहीं बनाता बल्कि चेहरों में छुपे कर्ब को भी दिखा सकता है। शब्बीर ने मुनीर को आज देखा है और इस जैसे कीमती इंसानों को कल भी देखेगा। आज का शब्बीर हो कि कल का शब्बीर, उसका यही कहना है कि देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा सराओं की भी स्टॉक मार्केट होती है, जहां उनके नर्ख घटते बढ़ते रहते हैं। दुनिया भर में औरत और मर्द के अलावा एक तीसरी जिन्स भी मौजूद है जिसे उर्फ आम में ख्वाजा सरा कहते हैं। देखने में यही आया है कि इन ख्वाजा सराओं का कोई घर बार नहीं होता। ये सब अपने गुरु के रहमो करम पर होते हैं, जिसका ताल्लुक खुद तीसरी जिन्स से होता है। गुरु का हुक्म करके आखिर होता है और ये ख्वाजा सरा अपनी कमाई का एक मखसूस हिस्सा गुरु के हवाले करते हैं। लाहौर से तो खबर आई है कि बास ताकतवर गुरु ख्वाजा सराओं की बाकायदा खरीदो फरोख्त की मुलव्विस है। ख्वाजा सराओं की कीमत उनके हुस्न और हुस्न इखलाक और नाच गाने की अच्छी तरबियत के मुताबिक तय किया है। अक्सर ख्वाजा सराओं को एहसास तक नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें गुलामी और आज़ादी का शऊर होता है और वो बाकायदा एहतजाज भी करते हैं। 25 साला ख्वाजा सरा निगाहें का ताल्लुक गुजरांवाला से है। उन्होंने एक गुरु और उसके चेलों की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम लगाया और शदीद एहतजाज भी करते देखी गई। फिर शब्बीर ने एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं को थाने में भी देखा। समा गुल जो ख्वाजा सराओं की बहबूद के लिए एक NGO चलाती है, कहती हैं कि ख्वाजा सराओं को चंद हजार रुपए में खरीद कर महंगे दामों बेच दिया जाता है। उनसे भीख मंगवाई जाती है, जिस्म फरोशी कराई जाती है और इनकार पर तशद्दुद किया जाता है। ये सारे वाकयात शब्बीर के इर्द गिर्द जन्म लेते हैं और शब्बीर उन्हें देखता है। आज भी उसने देखा और कल भी देखेगा, क्योंकि उसका कहना है कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।